Students, we are going to ask about the moment of the force, that is the turning effect of the force when force act on an object in such a way that about a pivot point it can turns the object clockwise or anti-clockwise. But this moment depends on the two factors. One of them is a force, another is a distance. So you can easily find the moment by multiplying force and the distance. But remember, distance should be this distance is a perpendicular distance between the pivot point and the force. And how can you find this distance? It's a very simple technique. For example, in this case, this is a pivot point, so you will draw a line that is parallel. This line must be parallel to the force and pass through the pivot point like this. Now you can see that this line is parallel to the force is acting like this, and the distance between these two lines is known as a perpendicular distance. So if you know this perpendicular distance, you know the force, you can easily find the moment. But sometimes the situation is critical, but normal cases the situation is very simple. I'm going to show you. For example, in this case, you can see the perpendicular distance is a very simple. The forces are applying on it, and there are the three forces acting on the bar. Number one force F1 turns the bar in anti-clockwise. F2 is turning the bar clockwise. F3 is turning the bar in anti-clockwise. So according to the situation, if the object is in equilibrium, the anti-clockwise moment and the clockwise moment will be equal. And if you will find the moment due to the force F1, you multiply the F1 by D1, you will find the moment by F2 multiplied by the D2, and you will find the moment F3 multiplied by the D3. But remember that F3 D3 and F1 D1 is an anti-clockwise. So sum of the two moment will be equal to the clockwise moment. And another thing I'm going to share with you, if the object is in equilibrium, then the turning effect also equal. And let's suppose if the forces are acting on it, another force, maybe F4. So this F4 have no role in the turning effect. Why? Because this force is acting on the pivot point. But if the object is in equilibrium, we can say that the upward forces and downward forces are equal. So we can say that the F1 plus F2 equals to F3 plus F4. So there are the two conditions of the equilibrium. One of them, forces must be balanced. The second one, turning effect or moment will be equal or balanced. So there are the two very important conditions which helps you in problem solving. In this way is also the forces are balanced and turning effect is also balanced. So guys, equilibrium condition, there are the two equilibriums. In the one equilibrium, you have done that and our car is moving, the resultant force is a zero. So we can say this one is also an equilibrium, but the dynamic equilibrium. But in this situation, when an object is in the state of the rest, we can say that is a static equilibrium. But for the static equilibrium, again I am going to tell you, in this case the clockwise moment, anti-clockwise moment will be equal, as well the forces are also balanced. Upward force will be equal to the downward forces. So these situations, you can see the some forces are acting in the upward direction, some forces are acting in the downward direction. And one thing should be clear in your mind, examiner may ask you find the turning effect about the any point. For example, if he will ask the turning effect about this point, so at this point there is no role of the force 4, because the force 4 is acting at the pivot point. Only three forces play a role in turning effect. This one, F1, F2 and F2, F3 and F4. F1 will not play role in the turning effect because it's set on the pivot point. But one thing should be clear, the forces are balanced means upward forces must be equal to the downward forces. And all distance will be measured from the pivot point. Okay. The second thing is center of the gravity is a point at which you can balance the object. All the weight of the object act at this point. For the regular objects, you can easily find by drawing their line of the symmetry. But sometime in irregular shape, you will suspend this shape by using a plumb line. And when the two lines intersect with each other, you can easily find the center of gravity. So center of gravity play a very important role in the stability. When it close to the surface will be more stable. So if the surface area
and the center of gravity both play a very important role in the stability. Greater the surface area, greater the stability. जितना ज़्यादा सेंटर उसका क्लोज होगा सरफेस से उतना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा. So I hope this one will be clear to you. We have done these topics in the previous slides. Now I'm going to discuss the next one, thermal physics. And work done. Okay, in the work done, basically, work depends on the force and the distance. If you know the force, if you know the distance, you can easily find the work done. So very simple formula to find the work done is the force and distance. But kinetic energy and potential energy, both are energy. All the energies are proportional to the work. Or you can say that if you are going to find the work force multiplied by distance, so you are going to calculate the energy. अगर आपने वर्क फाइंड कर लिया है तो इट मीन्स कि आपने एनर्जी भी फाइंड कर ली है. अब ये ऑब्जेक्ट पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ हाइट, तो इट हैव सम पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हेन इट फॉल डाउन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बट इफ it is attached by a string, the some energy also stored in the form of elastic potential energy. So according to the law of conservation of the energy, neither be created nor be destroyed, but it changes from one form to another form. And very important relation between them, I'm going to show you that kinetic energy converts transfer of energy, thermal energy, sometimes sound energy, electrical energy, light energy, or stores energy, all the energy which are stored in the form of normally chemical energy, elastic energy, potential energy, nuclear energy. These are energy which stores, and the transfer energies are in the form of this one. Normally when an object fall down, for example, if you lift an object, basically you give some potential energy. So if you give some potential energy, you can easily calculate it by multiplying mass, g, and height. This is the formula for the potential energy. You can also find its power of the body if you know the time, because power is energy over time and work done over time. So you can easily calculate the power of the person if you know the potential energy by time. So it means power is a very simple formula, energy over time, work done over time. अब एनर्जी कोई सी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, उसको भी आप टाइम से डिवाइड करें पावर निकाल देंगे. हीट एनर्जी भी हो सकती है, उसको आप टाइम से डिवाइड करें पावर निकाल देंगे. वर्क डन यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस है, इसको टाइम से डिवाइड करें आपके पास पावर आ जाएगी. तो यू हैव अ फार्मूला ऑफ द पावर एज वेल. पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आपके पास जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, हाफ mv². और बोथ एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है और कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, बट व्हेन इट फॉल डाउन उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv². और इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, नो लॉस इन द एनर्जी, तो अगर मैं कहूँ कि सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस फार्मूला, mgh इज इक्वल टू mv². Or you can write that you have a relation 2gh is equal to v². This is a very important relation which helps you in problem solving when the potential energy converts into the kinetic energy. But sometime ये भी हो सकता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही हो, इसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो गई हो. इन द फॉर्म ऑफ हीट भी लॉस हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड लॉस हो सकती है. लेकिन वो जो भी होगी एनर्जी, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 100 जॉल्स थी पोटेंशियल एनर्जी, इसका 20% लॉस हो गया है, तो 20% मीन्स 20 जॉल्स लॉस्ट हो गया, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 80 जॉल्स होगी. तो ये बात भी है, ये माइंड में रखना होता है कि एनर्जी लॉस हो रही है नहीं हो रही. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है. या फ्रिक्शन को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो फिर हम इग्नोर करने पे हम कह सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो यू मे राइट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² व्हेन द सम टाइम पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी. हीट एनर्जी का फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज E इज इक्वल टू mc डेल्टा t. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड हेल्प्स यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो यू कैन इक्वेट द एनर्जीज, आप इन एनर्जीज़ को इक्वेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन बट यू नो दैन एट दिस टाइम यू आर यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है. फ्यूल्स में जितनी एनर्जी है वो केमिकल है, डैम्स में पोटेंशियल एनर्जी होती है,
वेव्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ये सारा ये टेबल आपके साथ शेयर हुआ है नोट्स में, आप देख सकते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द फार्मूलाज टुडे नाउ। यहाँ पे ये फॉसिल फ्यूल्स आपके जितने भी हैं ये नॉन रीन्यूएबल्स होते हैं, लेकिन आपके पास जो सोलर एनर्जी है, विंड है, वाटर से जो एनर्जी मिलती है, ये आपकी रीन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। एफिशिएंसी जब आप फाइंड करते हैं तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू द टोटल एनर्जी इनपुट। अब टोटल एनर्जी दो जगह पे डिवाइड होती है, कुछ आउटपुट आपको मिलता है यूजफुल और कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो वी कैन से कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द टू एनर्जीज, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जब एफिशिएंसी आप फाइंड कर रहे होते हैं तो आप एनर्जी आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करते हैं या फिर पावर को डिवाइड करते हैं। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आप यूजफुल पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, आप पावर भी यूज़ कर सकते हैं और आप एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों फार्मूला करेक्ट है, ठीक है जी, टाइम्स 100। आई होप दिस वन इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये आपकी पावर है, कितनी एनर्जी है वेस्ट हो गई है 25 जॉल। 75 को 100 से आपने डिवाइड कर दिया, 75% है। ये 10 आउट ऑफ 100 है, 10% है। तो ये आपके पास इजीली या फार्मूला आपके सामने है, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क डन का फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस जाउल्स में कैलकुलेट होता है। और यही अगर आप एनर्जी पूछें तो एनर्जी के लिए भी सेम फार्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप वर्क कर रहे होते हैं उतनी ही एनर्जी यूज़ हो रही होती है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इससे आप एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। इफ़ यू नो पावर, बस आपको सब्जेक्ट बनाना होता है, और पावर भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। तो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पे और एरिया पे। इज़ अ बेसिक फार्मूला इज़ अ फोर्स ओवर एरिया। लेकिन अगर आप लिक्विड की वजह से प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, अगर आपको फोर्स पता है, एरिया पता है, प्रेशर निकाल सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाते हैं प्रेशर उतना ज़्यादा होता है, लेकिन एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इसके यूनिट्स पास्कल हैं। अगर आप बात करते हैं लिक्विड के प्रेशर की तो वो डिपेंड करता है डेप्थ पे, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी किसी प्लेनेट पे। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। रो जी एच, रो डेंसिटी है लिक्विड की, जहाँ पे आपके पास वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। डेप्थ आपके पास लिक्विड में हमेशा अपर सरफेस से ली जाती है। आप प्रेशर फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं रो जी एच। लेकिन आपको ख्याल रहे कि रो जी एच फार्मूला भी प्रेशर के लिए है और फोर्स ओवर फार्मूला भी प्रेशर के लिए है। ये दोनों फार्मूला हैं जो आपके यूज़ होते हैं। ये लिक्विड प्रेशर है और ये वाला फार्मूला फोर्स की फॉर्म में। वो लिक्विड अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है पर यूनिट एरिया, तो यू कैन ऑल्सो मेक अ रिलेशन, फोर्स ओवर एरिया इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ से हम एक और रिलेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि बोथ आर इक्वल्स टू प्रेशर। तो ये फार्मूलाज देख लें, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, हमेशा याद रखें। फार्मूले के मार्क्स होते हैं, यूनिट्स का बहुत ज़रूरी ख्याल रखा करें। तो ये प्रेशर है यहाँ पे रो जी एच, डेंसिटी आपकी रो को रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट के लिए एच है, और जी फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनोमीटर और बैरोमीटर अब आपका वैसे नहीं है सिलेबस में, लेकिन यू शुड नो अबाउट इट कि ये आपका गैस के प्रेशर को मेजर करता है और ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, वेव्स आपके पास एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जिसमें आपके सामने ट्रांसवर्स वेव्स बनी हुई है। एम्पलीट्यूड आपको क्लियर है, वेवलेंथ क्लियर है। एक वेव से एक क्रस्ट से क्रस्ट तक, ट्रफ से ट्रफ तक ये वेवलेंथ होती हैं आपके पास। ये वेव फ्रंट्स हैं, और वेव फ्रंट दो तरह के होते हैं, एक सर्कुलर वेव फ्रंट होते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट है, और सर्कुलर वेव फ्रंट सर्कल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। और ये वाली जो वेव्स हैं ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल्स हैं, जिसमें कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शंस हैं। जहाँ पे वेव्स क्लोज हैं वो पार्ट कॉम्प्रेशन है, जहाँ पे दूर हैं वो रेयरफेक्शन है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। वो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला वेवलेंथ फाइंड करने के लिए। फ्रीक्वेंसी आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यूनिट्स का बहुत खास ख्याल रखा करें, क्योंकि एग्जामिनर जब भी ये क्वेश्चन देते हैं तो उसमें यूनिट्स को आपको मेगा की फॉर्म में, मिली की फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं। तो आपको यूनिट्स की चेंजिंग ज़रूर करनी होती है, इसके लिए आपको प्रीफिक्सेस का याद रखना बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपके पास जो है रिफ्लेक्शन है, वेव्स टकरा के रिफ्लेक्ट भी होती हैं वेव फ्रंट्स, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आपके पास। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये जब रिफ्लेक्शन हो रही है आप देख सकते हैं शेलो वाटर आपके पास, इसमें वेव की वेवलेंथ कम हो रही है क्योंकि स्पीड स्लो हो जाती है यहाँ पे, और स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट्स वाई ये रिफ्लेक्शन हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है।
और यहाँ पे आप देखें तो ये प्रोसेस डायफ्रैक्शन है, ये गैप नैरो गैप है। अगर गैप नैरो होता है तो वेव इस तरह से बैंड हो जाती हैं। इस बैंडिंग को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। लेकिन उसके लिए गैप का वेव लेंथ के इक्वल या वेव लेंथ से कम होना ज़रूरी है। अगर ये गैप ज़्यादा हुआ तो डायफ्रैक्शन इतना प्रॉपर नहीं होगा, सिर्फ एजेस पे से वो थोड़ा सा बैंड होंगी, अदरवाइज़ वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। आई होप यू कैन सी दिस। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एजेस से बैंड हुई है, वरना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर गई हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। रिपल टैंक कंस्ट्रक्ट करने के लिए कभी कभी आ भी जाता है कैम्ब्रिज में, और कैम्ब्रिज स्पेसिफिक डायग्राम को टारगेट करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, और आप देख सकते हैं कि जितने डिस्टेंस पर इमेज है उतने ही, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है, और बिल्कुल उस पॉइंट के सामने बनता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। ये बात माइंड में रखिएगा। और ये इमेज फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत आपके साथ क्लास में इसको डिस्कस भी किया गया है और प्रैक्टिस भी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास रे ट्रैवल करती हुई आ रही है, लाइटर से डेंसर में बैंड हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइटर से डेंसर में जा रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। लेकिन जब डेंसर से लाइटर में आती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है। यू कैन ईजिली फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय यूजिंग द फार्मूला साइन आई ओवर साइन आर। इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको लैब में करवाया जा चुका है और बहुत अच्छे से आपने ये परफॉर्म किया हुआ है। सेकेंडली, लेकिन आपके पास एक और फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। सो गाइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट कि ये आपके पास देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन दिस केसेस कब होता है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। और क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री का बन जाता है। दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये देख लें, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बेसिकली क्रिटिकल एंगल इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का बन जाए, वो क्रिटिकल एंगल है। और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हुआ तो वो रे बाउंस बैक कर जाती है। इसके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मौजूद है इन दोनों के दरमियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, आपको क्रिटिकल एंगल पता है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एको के केस में जब भी एको होता है कहीं पे, ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस हैं। और जब हम साउंड की बात करते हैं यहाँ पे तो हम एको की बात करेंगे। एको में हमारे पास स्पीड इज़ इक्वल टू 2D/T वाला फार्मूला यूज़ होता है नॉर्मली साउंड के केस में। यू नो वेरी वेल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, पिच किस पे डिपेंड करती है, आपके पास जो उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेंसेज की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, जितनी भी लेंस पैरेलल रेज होती हैं हमेशा प्रिंसिपल फोकस पे मीट करती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा हमेशा हमेशा, जब भी रेज आप ड्रॉ करेंगे ये दो रूल्स हमेशा माइंड में रखने होंगे आपने, कि वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास कर रही है यानी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गुजरती है। ठीक हो गया? तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो या आपके पास साउंड हो या आपके पास वेव्स हों, ठीक है ना, ये डिस्पर्जन है। यू कैन सी द स्प्लिट ऑफ द वाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स। आपके पास हमेशा फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ होता है। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।